Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with the generations of computer. The history of computer is actually referred in reference of different generation of computing devices. हमारे जो कंप्यूटर है या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं इनकी बेसिकली स्पीड पावर मेमोरी और मेमोरी में एडवांसमेंट इनके इंक्रीज ऑफ नॉलेज की वजह से हमने डिफरेंट जनरेशन्स में कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू देयर हिस्ट्री के पहले हम according to their computational power, according to their capacity to store data. So we have categorized them in different generations. So basically these categories are on the basis of technological development कि टेक्नोलॉजी में जिस तरह आपकी एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में जिस तरह से बेहतरी आई है उसी वैसे वैसे जो जनरेशन्स और उनकी जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन वो पॉसिबल हुई है जैसे जैसे जनरेशन हायर आती जाती है आपकी जो कंप्यूटिंग डिवाइस की पावर है वो इंक्रीज करती जाती है और उसका साइज जो है वो स्मॉल भी होता जा रहा है और उसकी जो प्राइस है वो चीप होती जा रही है सो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी what happens we are able to maintain and have powerful devices and in cheap price and in small size. So this chart, this table is showing you different generations. We are currently have 5 generations, first, second, third, fourth and fifth generations. Here in the second column, period, in period section, we have been provided with the information of the years when the from like 1942 to 1955 the first computer generation was launched and the technology actually these generations are made on the basis of technology so the technology of this generation was vacuum tube so this is the technology on which different computer system was based on. In the second generation from 1955 to 1964, the technology was changed and people started using transistors. These are different devices that were different computing components that were used in computers for calculation purposes. From 64 to 75, people started using ICs. IC stands for integrated circuits. Since 1975, microprocessor or large scale integration have started working. लाइक माइक्रोप्रोसेसर छोटी छोटी चिप्स जो हैं वो आपकी इंट्रोड्यूस हो गई जैसे हमने बात की थी सीपीयू की माइक्रोप्रोसेसर्स की उसके बाद 1980 के ऊपर हम people have started working in the domain of artificial intelligence. So these are 5 generations and generations have been categorized on the basis of technology that people have used for computing devices. This is all about the first generation. You can see in the picture, this people were using the big, large size computer systems. So the first computers that were used were based on vacuum tubes and magnetic drums for memory. So this is in first generation, people were using different computers like Mark 1, ADSAC, ADVAC, UNIVAC 1 and ENIAC. ये different computers हैं जो कि हम सब की birth से भी पहले की बात हो रही है और ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स इनमें रिस्पॉन्सिबल थे कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग के लिए जो कि कैलकुलेट और स्टोर करते थे इंफॉर्मेशन को ये कंप्यूटर्स जो है वो बहुत मुश्किल से मेंटेन किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो है बेसिकली इन यूज़ करते थे पंच कार्ड को जिस पंच कार्ड के ऊपर जैसे आप पंचर नहीं होता सुराख किए जाते पंच कार्ड्स यूज होते थे जिसके ऊपर स्पेशल सिंबल्स के ऊपर बेस की हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया जाता था अब पीपल जो है वो जो यूज करते थे मोस्टली पीपल जो है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट किए होते थे आपके इस जनरेशन की कंप्यूटिंग मशीन से बिकॉज उनकी जो है एग्जिस्टेंस बहुत कम थी एक तो ये कंप्यूटर बहुत कम थे और दूसरी बात ये कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो
उसका यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत कम लोगों के साथ था। तो इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज में थे, तो ये ऑपरेट करने जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। दैट वाज ऑल अबाउट। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या थी इसमें, कैलकुलेशंस के लिए जो यूज़ होती थी, दीज वर वैक्यूम ट्यूब्स। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं कि हम लोग इससे पहले हमेशा मैनुअल काम कर रहे थे। इंसान जो भी काम करता था विदाउट हेल्प ऑफ मशीन काम कर रहा होता था, विदाउट हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अब ये टास्क को सेकंड्स में परफॉर्म, मिली सेकंड्स में नहीं करते थे। और इसमें जो हम काम करते थे, हार्डवेयर डिज़ाइन करते थे या फंक्शन परफॉर्म करते थे और प्रोग्रामिंग जो करते थे, वो मशीन लैंग्वेज में करते थे। मशीन लैंग्वेज बेटा वो होती है जिसको मशीन जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बेस करते थे जो कि वैक्यूम ट्यूब थी, जो कि बहुत ज़्यादा गेट्स, ये उसकी बेसिकली टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट जो है इंफॉर्मेशन है कि डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन में लोगों के लिए बहुत हेल्प हुई कि वो मैनुअल वर्क से किसी कंप्यूटर सिस्टम के वर्क के ऊपर आ गए। अब डिसएडवांटेज क्या था कि इस जो टाइप के कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन पे बेस करे थे कंप्यूटर्स, वो बहुत बड़े थे साइज में। अब उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती थी प्रोसेसिंग करने में, कैलकुलेशन करने में। अब साइज बहुत बड़ा होता था, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स बहुत कम थी, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। अब उनसे हीट जनरेशन बहुत, जैसा ही ना, विद ड्यू टू द बिग साइज ऑफ द मशीन, हीट प्रोडक्शन वाज डेफिनेटली ऑन दैट अमाउंट, और उसके लिए हमें एसीज और एयर कंडीशनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। वो पोर्टेबल नहीं थे। पीपल कैन नॉट टेक देयर सिस्टम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। अब आजकल के जो 5th जनरेशन में कंप्यूटर्स हैं, वो कंप्यूटर्स की स्पीड आजकल के मुकाबले में बहुत कम होती है, और रिजल्ट्स भी आजकल के जो हमारी लेटेस्ट जनरेशन है उनके मुकाबले में रिलायबल नहीं होते थे। प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए मेंटेनेंस की मुसलसल ज़रूरत रहती थी। Here comes towards the second generation. Second generation में जो कि 1942 से 55 तक थी, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई उसको कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स ने जगह ले ली अब वैक्यूम ट्यूब्स की। अब इसको हम कहते थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। बेसिकली ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बेस करता है। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो कैपेबिलिटी है उससे क्या होता है कि सिग्नल को वो एम्पलीफाई करता है और ओपन क्लोज करता रहता है सर्किट को। यानी बेसिकली ये एक, वो कह सकते हैं कि मशीन की बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ट्रांजिस्टर ये वो डिवाइस है, ये वो कंपोनेंट है जिसकी मदद से इसके बाद से प्रोसेसिंग की जाने लगी। अब बेसिकली जितने भी डिजिटल सर्किट है, डिजिटल किसको कहते हैं, जो बिजली पे काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर है, उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा था, दैट वाज ट्रांजिस्टर। अब हमारा जो आजकल के भी लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उसमें भी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल है। अच्छा, अब इससे पहले डिजिटल सर्किट जो है वो कंपोज होते थे वैक्यूम ट्यूब से। ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड जनरेशन में आए, और अब हमारे जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं वो ट्रांजिस्टर की मदद से जो है वो कंपोज किए जाते थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स के जितने भी डिसएडवांटेजेस थे, वो चूंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो लार्जर थे, उसको एनर्जी ज़्यादा होती थी। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती थी कंप्यूटेशनल के लिए तो वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, और उसमें फेलियर्स बहुत ज़्यादा आते थे। तो विदाउट द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है कि ये पॉसिबल नहीं था कि हम इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस जो है वो उनको टेकअप करते, मतलब उनको सॉल्व किए जा सकते उन प्रॉब्लम्स को। अब ट्रांजिस्टर जो है इट वाज इन्वेंटेड इन 1947। अब जो या लेट 50s में आप इसको कह सकते हैं कि इट वाज फॉर सुपीरियर देन वैक्यूम ट्यूब्स ना, जो कि आप इसकी मदद से अब आप ये देख सकते हैं कि इफ़ यू कैन सी द पिक्चर कि कंप्यूटर का साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। अगर आप वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर्स को देखें तो आप देखें कि इट इज़ बेस्ड इन द एंटायर रूम। सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर कि अब आपका जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें जो आपके पास आए हैं कंप्यूटर्स, उनकी वजह से आपका एक साइज ऑफ द जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा
स्मॉल हो गया, छोटा साइज हो गया। अब क्या है कि अब आपके पास हीट जनरेशन में भी आपका बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूएबल, जिसको कहते हैं ना क्लियरली एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब एज कम्पेयर टू द वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर, साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज आल्सो रिड्यूस्ड। लेकिन हमारा जो इनपुट है या हम जो प्रिंट करके आउटपुट लेते थे, स्टिल उसके लिए हमारे पास जो आती थी रिपोर्ट्स आती थी, उसके लिए हम स्टिल पंच्ड कार्ड्स ही यूज़ करते थे। अब सेकेंड जनरेशन में हमारे पास जो है बाइनरी मशीन लैंग्वेज की बजाय हम सिंबॉलिक मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हमें 010101 लाइट ऑन है लाइट ऑफ है के सिग्नल्स जो है, उन सिग्नल्स को मैथ्स की फॉर्म में हमारी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम उसको मेमोराइज करते। तो हमारे पास स्पेशल लैंग्वेज जो सिंबॉलिक लैंग्वेज थी वो हमारे पास आना शुरू हो गई। और हमारे पास जो है हाई लेवल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश जैसी लैंग्वेज होती है, जिसमें हम अपनी लैंग्वेज के बेस करते हुए कोड्स जनरेट करते हैं, उनकी डेवलपमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हो गई। सो द फर्स्ट कंप्यूटर जो है इस जनरेशन के ऑटोमेटिक एटॉमिक एनर्जी की जो बेसिकली है उसकी प्रोमोशन में हमें हेल्प आउट करना शुरू हो गया। अब उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट जो मशीन्स हैं, IBM 7074 series, these are different. IBM 1400 series, CDC 164, these are different names of computers that use transistors for their computation. So these are the list of benefits के उसकी स्पीड वैक्यूम ट्यूब से बेहतर हो गई, फास्ट हो गई। हम इसको जनरेशन G1 कंप्यूटर कहते हैं, जो लेस वन थे, स्मॉलर इन साइज थे, इनको लो पावर कंजम्पशन चाहिए थी। और उसके बाद हमारे पास मशीन लैंग्वेज जो है उससे अगली G2 असेंबली लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, कोबोल, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हमने उसको जो है उनको करवाना शुरू कर दिया और ये मशीन्स जो है वो पोर्टेबल हो गई हैं। मेंटेनेंस, अब इसके डिसएडवांटेज ये है कि स्टिल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा चूंकि छोटा नहीं हुआ तो इसकी मेंटेनेंस जो है इट वाज डिफिकल्ट, ठीक है। और उसके बाद एयर कंडीशनिंग जो है वो अगेन वो चाहिए थी हीट प्रोडक्शन के लिए। अब जो ये दीज कंप्यूटर्स आर नॉट यूज्ड एज पर्सनल कंप्यूटर, ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे, इनको हम पर्सनल कैपेसिटी में यूज़ नहीं कर सकते थे। Now we are going to learn third generation computer, that is from 1964 to 1975. अब इस टाइम पीरियड में जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई वो बेस कर रही थी आईसीज पे। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड एंड सी स्टैंड्स फॉर सर्किट। बेसिकली ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैं, इन्होंने जो है ट्रांजिस्टर्स को जो है वो रिप्लेस किया एंड नाउ दे वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स, सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर्स आर स्टिल टन्स ऑफ मिलियंस, जिसको कहते हैं ना टेंस ऑफ मिलियंस आर यूज्ड, लेकिन हमने स्पेसिफिकली चिप इंट्रोड्यूस करवा दी, सेमीकंडक्टर्स, जिन्होंने स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर्स को ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया और फास्ट कर दिया। अब हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स यूज होते थे वो रिमूव हो गए। इन दिस थर्ड जनरेशन पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड। थर्ड जनरेशन में हमारे पास प्रॉपर इंटरफेसिंग आ गई, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप विंडोज़ हैं, आपके पास विंडोज़ अवेलेबल है जिसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर दिया, आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ गए, आपके पास इनपुट के लिए कीबोर्ड्स आ गए, आउटपुट के लिए आपके सामने कंप्यूटर्स आ गए। सो पहली दफ़ा कंप्यूटर जो है लोगों के लिए इस्तेमाल करना ईजी हो गया। पहले लोग हर एक पर्सनल कंप्यूटर को अफोर्ड नहीं करता था। अब चूंकि हमारे प्रीडिसेसर्स जो है प्रीडिसेसर्स की निस्बत स्मॉल साइज में और सस्ते कंप्यूटर्स हो गए थे, जिसकी वजह से इसका यूजेज जो है आम नॉर्मल लोगों में बहुत ज़्यादा जो है कॉमन हो गया। अब इम्पॉर्टेंट मशीन्स जो हैं IBM सिस्टम 360, 370, PDP-8, डेक यूनिवैक 1108, यूनिवैक 9000, ये डिफरेंट मशीन्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस हो गई हैं। अब डिफरेंट बेनिफिट है, स्मॉलर इन साइज, लो कॉस्ट एंड प्रीवियस, लो पावर कंजप्शन है, इजी टू ऑपरेट है, पोर्टेबल है, इनपुट डिवाइसेस आपके पास डिसेंट सोफिस्टिकेटेड इंट्रोड्यूस हुई हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि अभी भी आईसी चिप्स को
इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट जो है वो मेंटेन करना है, और इसके लिए कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। फोर्थ जनरेशन में हमने डिफरेंट जो छोटी चिप्स जो है जिनको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं। So microprocessor is the technology of your fourth generation starting from 1975 to onwards. Thousands of ICs जो है इनको एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे बनाया गया, कंपोज किया गया, ठीक है। अब जब देखा जाए कि पूरा का अब आपका जो फर्स्ट जनरेशन था वो पूरे रूम में फिट होता था, अब क्या है फोर्थ जनरेशन में लोगों की पाम ऑफ द हैंड, पाम ऑफ द हैंड कहते हैं हथेली को, आपके छोटे छोटे फोन्स की शक्ल में, टैबलेट्स की शक्ल में, आपकी गोद में रखा लैपटॉप जो है, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स। सो बहुत छोटी सी चिप ने आपने थाउजेंड्स ऑफ आईसीज को कंपोज किया है, जिसकी वजह से आपकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, आपका साइज मशीन का बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। ये आपको आपके जो एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम्स हैं, आपने CDD DVD रोम इस्टेब्लिश हो गए, आपके सामने ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं, यानी कलरफुल स्क्रीन्स हैं जिसकी मदद से आपका काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब इंपॉर्टेंट मशीन्स कौन सी, आपके इंटेल प्रोसेसर, जैसे हम कहते हैं ना मेरा कंप्यूटर इंटेल का है, और ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि इस मशीन पे पेश करें। फिफ्थ जनरेशन जो 1980 के बाद से जिसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अब स्टिल इसमें रिसर्च वर्किंग एंड रिसर्चर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अब बेसिकली इसमें हम क्या करें कि हम वो जैसे हम डिफरेंट इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस आ गए, हमने रोबोट बनाने शुरू कर दिए, वॉइस रिकग्निशन आ गया, आपकी टच स्क्रीन है, ये सारी एआई बेस्ड है ना, टच स्क्रीन में वो हमारे हाथ का प्रेशर की बेस के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है, जो हमारे हाथ के प्रेशर को असेस कर रहा होता है, ठीक है। अब वॉइस रिकग्निशन इसमें इन्वॉल्व हो गई है। अब आपके पास जो पैरेलल प्रोसेसिंग करें कि एक वक्त में एक वक्त में अब बहुत सारे काम जो है, म्यूजिक चल रहा होता है, वीडियो चल रही होती है, आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, आप उसके साथ किसी पावर पॉइंट का प्रोग्राम, वर्ड का प्रोग्राम, पैरेलल सारी प्रोग्रामिंग चल रही होती है, आप एक वक्त में वो अपनी आवाज़ के साथ कमांड्स देते हैं, आप ओपन कहते हैं, हेलो गूगल कहते हैं, तो गूगल आपको वॉइस में रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो जाता है। So these are the different things that are very helpful. This is the generation of fifth generation, जिसमें आप जो सोचते हैं कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करता है, आपके आंख की जो मूवमेंट है, आप जो बायोमेट्रिक, आप अपने अंगूठे का निशान जो मशीन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो उसकी मदद से एक पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन। ये सारी की सारी जो है एआई बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गूगल मैप है, आप किसी भी लोकेशन पे खड़े हैं वो आपको गाइड करे, दीज आर ऑल एआई बेस्ड मशीन्स। तो जी वी हैव लर्नड अबाउट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। इन फोर्थ एक्चुअली दीज जनरेशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी डिफरेंस होता गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि इंसान ने, ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, तो वो एक्सपेंसिव से जो है वो चीप हो गई, उसकी प्राइस कम हो गई, साइज छोटा हो गया, और उसको स्पीड फास्ट हो गई, और आप उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती चली गई। जी बेटा, आज के लेक्चर में अगर आपको जितने सवाल पूछने आप प्लीज मुझसे पूछें, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। आपके मैम आपने बात की थी कि जो थर्ड जनरेशन है उसमें फिर हमने लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करना शुरू कर दी। तो मैम जो फिफ्थ है इसमें भी तो हम इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, या सॉरी, फिर इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप नहीं, नहीं, हमारी उससे पहले जो कोडिंग होती थी ना, तो वो हम स्पेशल जो है ना वो मशीन लैंग्वेज में करते थे। अब आप देखिए हमारा कंप्यूटर बिजली पे चलता है ना, या तो सिग्नल ऑन है या सिग्नल ऑफ है। अगर सिग्नल ऑन जी है तो वो 1 कंसीडर करता है, अगर सिग्नल ऑफ है तो वो 0। इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो कि मशीन की जुबान है। जैसे 00110010010, ये डिफरेंट मशीन कोड है, सिग्नल ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऑफ, ऐसे समझता है कंप्यूटर। अब आप कितने कोड्स याद रख सकते हैं, आप नहीं याद रख सकते, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो थर्ड जनरेशन से क्या हुआ कि जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे मैंने एडिशन करना है ना, तो मैंने उसके लिए ऐड वर्ड रख लिया, सो इट वाज इजी।
आप मुझे बताएं कि वर्ड ऐड इजी है या मैं 010999 सॉरी 0100001109 मैं इसको याद रखूं? ह्यूमन कैपेसिटी से ऐड। बाहर। ऐड, डेफिनेटली ऐड। तो फिर हमारी थर्ड जनरेशन से ऐसी लैंग्वेजेस में प्रोग्राम बनने शुरू हो गए दैट वाज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड करते थे, ह्यूमन इंटरप्रेट कर सकते थे। इससे प्रोग्रामिंग जो है इट वाज डेड इजी। ठीक है, उससे प्रोग्रामिंग यस बहुत मैम ज़्यादा समझ। आसान हो गई। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखें, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटे और सेहत के लिए दुआ करते रहा करें। बहुत शुक्रिया। मैम अल्लाह। आपकी अच्छी बात मैं बताऊं। जी प्लीज़ प्लीज़ बताइए। याद रखो कि अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है, और बेशक। हर तकलीफ मुसीबत के बाद कुशादगी है। बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला बेशक बेशक तंगी के बाद आसानी है, ये तो अल्लाह का वादा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।